Hello friends, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we shall start the second part of our chapter 5, Seeds and Seeds. Dear students, if you have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon to get latest videos. Now, let us move on to the part 2. See students, if you have not seen part 1, you can find the link over here. Click on the link and you can watch the video for part 1. Let us see how seeds travel. Wandering seeds. Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at the picture 1 on the next page and see the flying seeds. Here we can see that these seeds are flying and going somewhere else, and they are telling, write a letter. This tree is telling to their seeds, write a letter, and the seeds are replying, okay, bye. Let us see the pictures of the seeds who traveled. Now here we can see in picture 1, this white fur type seeds travel by air from one place to another place. Here in picture 2, we can see that these seeds are heavy in weight, so they cannot fly. They will stick to the animals with the clothes of human being and get travel from one place to another place. Likewise, many seeds travel from one place to other place. Now here we will see some questions and try to find out the answer for that. Have you ever seen any seed that can fly? Obviously these white seeds are easily visible and available in India, so we can easily find these seeds around us. So we have seen that. Yes, I have seen such seeds. It has white hairs attached to it. ऐसे सीड्स हमने देखे हैं और उसको जो है white hair उसके साथ attached होते हैं. What is it called in your area? बुढ़िया के बाल, old woman's hair. See, लोकल लैंग्वेज में इसको जो है गुजराती में क्या कहा जाता है? डोशी. बुढ़िया के बाल मतलब वो उसके बाल सफेद होने की वजह से बुढ़िया के बाल सफेद होते हैं, तो गुजराती में बुढ़िया को डोशी कहा जाता है. तो यहाँ पर जो है गुजरात में ये शब्द वो सीड्स के लिए, व्हाइट हेयर वाले सीड्स के लिए प्रयोग किया जाता है. लुक एट योर सीड कलेक्शन. गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाय flying. Now see, in our previous video we have done an activity of collection of the seeds. Now out of those seeds, how many of them can travel by flying or by air? Let us see. Cumin seed and anise seed. जो सौंफ होता है, ये दो सीड हमारी लिस्ट में ऐसे थे जो by air travel कर सकते थे. Let us see. Look at picture 2. This is our picture 2. This seed cannot fly because it is heavy. So this seed cannot fly. But it can still travel by sticking on the fur of animals. ये सीड जो है वो एनिमल्स का जो फर होता है, उसकी स्किन होता है, उसके साथ देखो चिपक जाता है ये. ठीक है. अगर जो लोग, कुछ लोग जो गांव में देखा होगे तो भेड़ बकरियां वगैरह रहती है, उनकी बॉडी पर भी ये से सीड्स जो है वो चिपक जाते हैं. और ऑन आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े पर भी ये जो है छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं. इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड. रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल. सी, वेलक्रो जो हम लोग यूज करते हैं शूज वगैरह में, सैंडल वगैरह में, उसका आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को कहां से आया उसके बारे में हम देखेंगे. सी, दिस इज आवर सैंडल, दिस इज अ वेलक्रो. आप देख सकते हैं, सब लोगों ने वेलक्रो देखा होगा. यस. नाउ दिस हैपेंड इन द ईयर 1948. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग. ही वाज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. देखो, जॉर्ज मेस्ट्रल जो है वो वॉकिंग से घर आ रहे थे अपने डॉग के साथ,
तो उन्होंने देखा कि उनकी मतलब जो कपड़ों के ऊपर और डॉग का जो फर था, उसकी स्किन थी, उसके ऊपर जो है ये सब सीड चिपके हुए थे। He wondered what made them stick. वो उसको दिमाग में मतलब ये आया कि ऐसी क्या चीज इस सीड्स में थी जो चिपक गया इसके साथ। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसी चीज होती है जो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने ये जो सीड थे उनको माइक्रोस्कोप में लगाकर इसको देखा कि इसमें क्या है। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. उसमें बहुत सारे hooks थे, तो वो जो है वो कपड़ों को और फर के ऊपर चिपक जाते थे। This gave Mastral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. उसने वेल्क्रो बनाने का आइडिया वो जो सीड थे जो चिपक के आए थे उसी से आया, और उसने सेम मटेरियल बनाया टाइनी हुक्स वाला जो कि एक दूसरे के साथ चिपका रहे। Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. What a way to take inspiration from nature. देखो नेचर से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। बस हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और हमारा नजरिया होना चाहिए, तो हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको लर्न भी कर सकते हैं। Now look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. See, first picture. Here we can see a coconut tree. ये जो coconut है, most of the time we are finding the coconut tree at a river bank or a seashore. समंदर किनारे या नदी किनारे इसको हम लोग ज्यादातर पाया जाता है। तो ये जो होते हैं कोकोनट, अगर टूट के नीचे गिरते हैं तो समंदर में या चले जाते हैं या नदी में चले जाते हैं, तो बह के एक जगह से दूसरे जगह ये लोग ट्रैवल करते हैं। सपोज कोई बर्ड अपने मुंह में दाना लेके या सीड लेके जा रहा है और उड़ते उड़ते उसके मुंह से गिर जाता है, तब भी ये सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है। यहाँ पर एक स्क्विरल दी गई है, उसके हाथ में भी आप देख सकते हो एक सीड है। वो उसको लेकर एक जगह बैठ के खा नहीं सकती, थोड़ा आगे जाएगी पीछे जाएगी। इसी तरह जो है सीड्स जो है अलग अलग प्लेसेस पर ट्रैवल करते हैं और अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं। Yes. Now some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? देखो सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं ना, उसके जो पॉड्स है वो जब पक जाते हैं अच्छे से तो वो बर्स्ट करते हैं और उसका सीड्स जो है उसमें बाहर निकलता है। क्या कभी आपने मतलब उसके बर्स्ट होने की आवाज सुनी है? उसके मतलब सोयाबीन होता है उसके फटने की आवाज सुनी है क्या? I don't think any of you have heard. Even I don't have heard that. No, I have not heard that sound. कभी ऐसा साउंड हमने सुना है नहीं। Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. अब देखो, सपोज ये सीड्स जो होते हो है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते, एक ही जगह पड़े रहते, तो क्या होता है? If seeds would not spread and would remain at one place only, there can be many problems for those seeds. What all problems will be there? Let us see. All the seeds would fall near the parent tree. This will prevent those seeds from getting enough sunlight, air, water. देखो, अगर वो सीड्स उसके जो पेरेंट ट्री है उसके आसपास ही पड़े रहेंगे तो उसको इनफ सनलाइट, इनफ एयर और इनफ वाटर नहीं मिलेगा। जबकि किसी भी सीड को अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए, उसको फूलने फलने के लिए सनलाइट, एयर और वाटर बहुत जरूरी है। जैसे हम बड़े होते हैं तो खाना बहुत जरूरी है, वैसे जो सीड का जो खाना होता है वो सनलाइट, एयर एंड वाटर होता है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड्स वुड फेल टू जर्मिनेट, और उसके रिजल्ट से क्या होता है, वो जर्मिनेशन उनका होता नहीं है, वो बड़े नहीं हो पाते हैं। न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर छांव में किसी पेड़ को लगाया जाए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सनलाइट मिलता है नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। ऐसे कौन कौन से अलग तरीके हैं जिससे जो सीड्स है वो अलग अलग जगह स्प्रेड होते हैं। सीड्स आर स्प्रेड बाय फॉलोइंग एजेंट्स। एनिमल्स, जैसे हमने देखा वो डॉग था, वो डॉग के फर के ऊपर ट्रैवल किया, स्क्विरल लेके जा रही थी, एक बर्ड लेके जा रहा था। एनिमल्स, ह्यूमंस से भी फैलते हैं,
एयर ह्यूमन से मतलब कैसे फैलते हैं, यहाँ टू बी आएगा, ह्यूमन से कैसे फैलते हैं, जैसे सपोज कोई सीड अमेरिका में अच्छा है तो हमें उसको प्लांट करना है इंडिया में, तो हम वहां से लेके यहाँ पर भी आ सकते हैं बाई, अपने हाथ में लेकर हम लोग आ सकते हैं। बाय एयर हवा से, जैसे वो बुढ़िया के बाल हमने देखा वो हवा से स्प्रेड होता है। एंड बाय वाटर, दैट वी हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ द कोकोनट ट्री, दैट कोकोनट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वाटर। यस, नाउ सी हु केम फ्रॉम वेयर। देखो सारे सीड्स जो है मतलब सभी, अब हम जितनी सब्जियां जितने फल फ्रूट्स जो सब खा रहे हैं वो सभी इंडिया में ही पहले नहीं होते थे, पहले किसी और कंट्री में भी होते थे, सब कुछ इंडिया में नहीं होता था। लेट अस सी हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहां से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इंसानों को अपने लिस्ट में डाला था। किस लिस्ट में, एजेंट कौन कौन से थे जिससे सीड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते और स्प्रेड करते हैं। यस, हमने डाला है। We also carry seeds from one place to another place, knowingly और unknowingly, हम लोग जानकर भी या अनजाने में भी एक जगह से दूसरी जगह सीड्स को लेके जाते हैं। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. See, if we are visiting a nursery, we can see that these some flowers are very beautiful, so we will take that plant and plant it at our own garden so that the same plant can easily visible in our garden. तो हम लोग क्या है उसको वहां से जो है ट्रैवल करके यहाँ पर लेकर आते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, धीरे धीरे फिर वो अलग अलग जगह पर फैल जाता है। मेनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर। देखो हमें खुद को ही नहीं पता, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा कि कौन कौन से जो है इंडिया में पाए जाते थे और कौन कौन से जो है वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। Do you know from where chilies came to our country? Actually जो चिली है ना, मिर्च है, वो भी इंडिया में नहीं होती थी, किसी और कंट्री से आई है। These were brought to India by traders coming from South America. चिली जो है वो साउथ अमेरिका से इंडिया में आई है। Today we cannot think of a food without chilies. बिना चिली के आज कोई फूड हम लोग बनाते हैं नहीं, सब्जी में तीखा तो होता ही है। Now here is a story, here is a poem. In this poem we can see, we will find out that various fruits and vegetables came from various parts of the world. Let us read it out. Read this poem to know which plant came from where. Did you know this? I think most of you were not aware about this, that these plants came from different countries of the world. Let us see. From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. साउथ अमेरिका से क्या क्या आया था, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डू यू नो दिस? ऑफ कोर्स you may not be aware of this. A cabbage came from Europe. कैबेज जो है वो यूरोप से आया था, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश है वो यूरोप में आते हैं। एंड ऑल्सो पी भी जो है जिसको हम लोग पीस कहते हैं, मटर, वो भी जो है यूरोप से आया था। फ्रॉम अफ्रीका केम कॉफी बीन। कॉफी जो है वो कहां से आया था, अफ्रीका से। और भिंडी जो है, हरी भिंडी, वो भी जो है अफ्रीका से आई थी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, मतलब पूरी जमीन उन्होंने क्रॉस किया, इतना ट्रैवल किया, समंदर को ट्रैवल किया। डिड यू नो दिस? अ मैंगो सेंग कम इन, मैंगो कह रहा है कम इन, सब लोग इंडिया में आ जाओ, यानी इंडिया में जो है मैंगो पहले से होता था, आ जाओ इंडिया में। एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, ऑरेंज भी सबको वेलकम कर रहा है, वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड, बनाना ने भी कहा आप सबका भारत में स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, खुशी से मेथी और स्पिनच, ब्रिंजल और रेडिश ये भी जो है खुशी से झूम रहे हैं। दिस वॉज टेकन फ्रॉम चकमक, it was published in Chakmak in May and June 2002. It was translated by Anupa Lal. Yes, now we'll read out this. What all was grown in India long ago. बहुत पहले भारत में क्या क्या होता था उसके बारे में। Were mangoes and bananas grown here? Of course, they were grown in India. Now, what came from other countries? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटोज। देखो पोटैटोज और टोमेटो वो इंडिया में नहीं होते थे। आप जरा सोचो, हर एक सब्जी में जो पोटैटो डाला जाता है, आलू जो है वो मतलब हर एक सब्जी में उसको डाला जाता है।
Answer. In India, many crops like tea, mango, orange, radish, methi, spinach, etc. were grown long ago. ये सारी चीजें जो है वो भारत में होती थी. Yes, mangoes and bananas were also grown here. Mangoes और banana है वो भी इंडिया में होते थे. Tomato and potatoes, chilies, coffee, etc. have come from other countries. We have seen that these vegetables came from other countries to India. We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato. See, tomato and potato are very much necessary in preparing any sabzi. Potato is used in most of the dishes. पोटैटो को हम ज्यादातर सारी डिश में यूज करते हैं. सच डिशेस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज. सी चिलीज, potatoes and tomatoes are regular part of Indian vegetable making, Indian सब्जी मेकिंग. सो ये सारी चीजें जो है घर में होते हैं. आलू भी पड़े रहते हैं, 2-3 किलो ले आओ, खराब नहीं होते, पड़े रहते हैं, है ना. हालांकि टोमेटोज खराब हो जाते हैं, लेकिन पोटैटो वगैरह मतलब आप 2-3 किलो लेके आ जाओ घर में तो हर एक सब्जी में चलेगा और काम भी अच्छा देगा. Yes, now we'll find out vegetables or plants and country. कौन सी country से क्या है? Tomato, potato, green chili came from South America. Cabbage and pea came from Europe. Coffee bean, green bindi came from Africa. Mango, orange, banana, methi, spinach, brinjal and radish were originally found in India. Yes, now we are going to conclude this lesson. What we have learned. Reena has drawn this picture of the seed sprouted by her. See, this is a picture drawn by Reena. कि seed जो है, चना है, वो कैसे sprouting होता है. What do you think the seeds need for sprouting? Seeds को sprouting के लिए क्या चाहिए? See, for any seeds to get it germinated, it requires sunlight, air and water. अगर इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएगा नहीं. Write in your words. See, you have to write it in your words. How would Reena's seeds look if they did not get the things needed? अगर रीना का सीड जो है ये हरा दिख रहा है, अगर उसको जो चीजें चाहिए यानी एयर, सनलाइट एंड वाटर अगर नहीं मिलती तो क्या होता? शो बाय ड्रॉइंग अ पिक्चर. एक पिक्चर आप बना दीजिए यहाँ पर और बताइए. हाउ डू सीड स्प्रेड फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड्स. अपने खुद के शब्दों में आपको लिखना है कि जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से कैसे ट्रैवल करते हैं. वी हैव आल्सो सीन दैट द व्हाट वर द एजेंट्स वर फॉर स्प्रेडिंग द सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सी यू लेटर.